Welcome to another fun and engaging episode of All Fingers and Thumbs. Today's episode is about heritage and photography. So, whenever we talk about or think about heritage, all we can see or imagine is monuments because the monuments get more recognition throughout the world. But heritage is much more than that. It's about culture, it's about folklore, it's about the local people. So, in today's episode, we are going to talk about heritage from the standpoint of culture and also from the standpoint of photography. Uh, our guest, her name is Prarthi Shah. She has done MBA in Heritage Management. She has been associated with UNESCO. She is also a photographer and an entrepreneur. She runs her own company named Heritage Collective India. So, we'll welcome her and we'll get to know more about heritage, its significance, a little bit of history, and much more about photography. Along with that, I would like to thank Kshitij Nakashi. Uh, he gave us this space. His studio is named 77's Music School. It is located in Gothri. So we are thankful that he gave us this space to record this amazing episode. So let's welcome our guest and let's get to know more. Welcome, Prarthi, to our episode. Thank you for joining us today. Thank you for having me today. Um, so my first question is because we have this imagination of heritage क्योंकि बहुत सारे मतलब पूरे दुनिया में जब भी हेरिटेज की बात होती है तो हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं उनके आर्किटेक्चर और वो सब तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज कंसिडर्ड हेरिटेज और अ हेरिटेज साइट वेल हेरिटेज जब हम शब्द बोलते हैं तो दैट इज जब हम हिंदी में बोले तो विरासत, गुजराती में बोले तो वारसो, इनहेरिटेंस. तो हेरिटेज जब बोलते हैं तब एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल टू अस, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, तो उसको हम हेरिटेज में कंसिडर करते हैं. एकदम हम गाइडलाइन के मुताबिक देखें कि उसकी डेफिनेशन इज समथिंग विच इज मोर देन 100 years ओल्ड इज कॉल्ड हेरिटेज. मॉन्यूमेंट्स लोगों को ज़्यादा दिमाग में नोशन है कि हेरिटेज इज ओनली बिल्डिंग्स, बट इट इज़ नॉट. एंड हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी देखें तो पहले भी ऐसा था कि इट वाज डोमिनेटिंग मोर, के मॉन्यूमेंट्स पे ज़्यादा फोकस था. बट नाउ देयर आर कन्वेंशंस जिसमें वो लोग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं. देयर आर साइट्स विच आर नेचुरल इम्पोर्टेंट, सो उसके लिए नेचुरल हेरिटेज का भी एक सेक्शन. So, could you provide us a few examples of natural heritage sites? नेचुरल हेरिटेज साइट में सबसे इंटरेस्टिंग इज कंचनजंगा नेशनल पार्क. So it is a World Heritage Site from India, and it is also a cultural landscape category. So whenever a landscape is interacting with the nature and the culture of that people, that is called cultural landscape. वो सबसे नई कैटेगरी है यूनेस्को की to nominate a site. Oh, interesting, interesting. So, now that you have brought up UNESCO, I want to ask you the question that fascinated me the most. Okay, why did you choose heritage management as a part of your MBA curriculum? I was always fascinated with nature, and I have been running a group called Baroda Strikers since 10 years, which is working for environmental awareness and education. So nature was already my interest. I had an opportunity कि मैं सिर्फ environmental science में जाऊँ, but then I got an opportunity to know about this course. और this was very new thing in India that time. I was the first batch. और उसमें मैंने जाना कि there is a category called natural heritage. So मुझे मेरा heritage का interest और nature का interest दोनों मिला के कुछ करने का एक chance मिला. So I thought कि this is more specialized field. I would love to work in this one. So, when you finished your MBA, from where did you start your journey and how did it go? So after finishing my masters, I was employed by my own university for a while to market this very own course. Then I was given a chance to be a World Heritage Assistant in UNESCO Category 2 Center, which works for World Natural Heritage Sites, and it is based in Wildlife Institute of India. So I started my journey with UNESCO World Heritage Sites. Nice. So, under this job profile, did you travel a lot to various places and to understand the different cultures? I did,
And so part of my work is also traveling, going exploring places, documenting it, and at the same time I'm also a photographer, so I travel to a lot of places, capturing those things in my own lens. Oh, nice. Uh, but coming back, I'm equally intrigued by your photography skills, and I'll definitely ask you a few questions about it. But the primary question that I always have is because since you travel a lot, and also from the standpoint of UNESCO, you get to experience world differently, right? Different from us as laymen. So, how do you feel that different cultures have different ways of preserving their heritage? Yeah, so it's a very interesting question. Being from this background, uh, certainly you see those things differently. You see it from the point of view of preservation and conservation, but at the same time, you also study how local people are taking care of it. Hmm. Every culture has their certain rituals, certain festivals, which have the essence of their own heritage and culture. जब भी हम कोई साइट पे विजिट करते हैं एंड वी सी के हाउ दैट एंटायर लैंडस्केप फंक्शंस, तो आपको पता चलता है कि the culture has a connection with their local species of plants, whatever wildlife are there in their surrounding, and also their gods and goddesses जो हम देखें तो वो भी वहाँ के वाइल्ड लाइफ को डिपिक्ट करता है. तो इतने लेवल तक वी सी द एसेंस ऑफ हेरिटेज, एसेंस ऑफ आवर कल्चर in our own daily routine. So this reminds me of a movie named Kantara, which I was fascinated with. Um, in that film, they show this culture and this festival named Bhuta Kola, where they worship Varaha Rupam of the avatar of Lord Vishnu, which is to worship wild boar. So this was the film that showed us कि किस तरह से लोग लोकल लेवल पे जब जंगल एरिया में अगर रहते हैं तो वो कैसे वर्शिप करते हैं, उनका कल्चर या उनके लिए हेरिटेज क्या हो सकता है. It's a very beautiful film, first of all. Everybody should watch it. What you see in that film is the interrelation between nature and culture, how they interact, how our culture is depicting nature in the worshipping form. तो इसमें वो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनका जो फेस्टिवल है, उनके जो देवता है, वही वो जो फॉरेस्ट है उसको बचाने का ट्राई करे. एंड दैट कम्स इनटू द कम्युनिटी कि व्हाई दैट कम्युनिटी वर्शिप्स दैट फॉरेस्ट. तो नेचर को जो वर्शिप करने की बात है वो इस मूवी में दिखाई है, एंड हाउ दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज नेचर कंजर्वेशन इन आवर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. फैसिनेटिंग. तो मतलब जब मैंने वो फिल्म देखी थी ना, तब भी मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर ऐसे कोई ट्रेडिशन या ऐसे कोई फेस्टिवल्स या जो भी सेलिब्रेट होता है तो वो हर एक कंट्री में या हर एक कल्चर में अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीकों से होता है. तो क्या हम ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसे ट्रेडिशंस को एज अ हेरिटेज हम कभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने पहले बोला था कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है. वन ऑफ इट इज द फेस्टिवल्स जो सदियों से लोग अपने कल्चर में लेकर चल रहे हैं, एंड उसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. उनके जो टेरेन है उसमें भी एक सिग्निफिकेंस है. जो वो जो कम्युनिटी है, वो जो लैंडस्केप है, उसकी आइडेंटिटी शो करती है. So those kind of festivals are recognized internationally, also by UNESCO. इंटरेस्टिंग. बिकॉज जब वो फिल्म आई थी तो एक और चीज के लिए कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि उन लोगों ने जिस तरह से अपने ट्रेडिशन या अपने फेस्टिवल को दिखाया है, तो कई लोग जो बिकॉज वी हैव दिस साइंटिफिक अप्रोच कि जहाँ पर हम ये सब चीज़ों को थोड़ा बिलीफ सिस्टम के बाहर समझते हैं, अंधश्रद्धा में कंसिडर किया जाता है. तो क्या वैसे माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट वाले जितने भी फेस्टिवल या ट्रेडिशन या कुछ भी हेरिटेज हो जो पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसी चीज़ों को यूनेस्को जैसी अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है, तो क्या is it possible to make it worldwide? Is it possible to make people understand कि ये भी इतना ही important है, even though you may or may not believe it? हाँ, so यहाँ पे जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं और हिस्ट्री की बात करते हैं, वो थिंग्स आर डिफरेंट.
तो जिसके लिए आपके पास फैक्ट्स हैं तो उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, बट जो हम ओरल ट्रेडिशंस बोलते हैं वो माइथोलॉजी से आते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे फेस्टिवल्स आर कमिंग फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, लोग अपनी जनरेशन से फॉलो कर रहे हैं एंड देयर बिलीफ सिस्टम इज हेल्पिंग देम टू सेव देयर ओन सेरेमनी। तो उसकी वजह से वो जो फेस्टिवल है या उनका जो कल्चर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टू डॉक्यूमेंट, कीप इट एंड प्रिजर्व दैट culture of theirs for the coming generations. तो is there any particular experience that you like to share कि जहाँ पर आपने ऐसे कोई cultural significant कोई इवेंट या फेस्टिवल या कुछ एक्सपीरियंस किया हो या ऐसे कोई पार्टिसिपेंट बने हो आप ऐसे कोई चीज में? मैंने थीसिस किया था कंचनजंगा नेशनल पार्क पे एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट। सो वहाँ पे वो लोग जो माउंटेन है, माउंटेन कंचनजंगा, उसको सेक्रेड माउंटेन बोलते हैं एंड ऑल द 3 टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड दैट माउंटेन एज सेक्रेड माउंटेन, सो नोबडी कैन गो एंड समिट इट। जो सिक्किम के लोग हैं वो उस माउंटेन को अपना भगवान मानते हैं। दे ऑल्सो हैव बुद्धिस्ट रेफरेंस फॉर दैट। और वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है पंगलब सोल। पंगलब सोल फेस्टिवल इज बेसिकली रिलेटेड कि वहाँ पे जो पहला ध्यान होता है उसको वो लोग लेकर दे हैव देयर ओन डांस, मास्क डांस आपने शायद देखा हो तो। सो मास्क डांस है, वो करके दे मार्च, दे हैव अ ट्रैक, वहाँ जाकर वो लोग पहला ध्यान माउंटेन को चढ़ाते हैं और वहाँ से उनका जो फेस्टिवल है वो शुरू होता है एंड देन दे स्टार्ट सोइंग एंड द विंटर स्टार्ट्स। So it's a very beautiful thing which they are carrying forward and that is why it is called cultural landscape. Interesting. मेरे दिमाग में एक एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि since we are talking about intangible cultural heritage and these festivals and stuff, तो ऐसे कोई folklore या कुछ है जो आपने ऐसे विटनेस किया हो या फिर आपने सुना हो तो आपको लगा हो कि ये इतना शॉकिंग आज के टाइम में, मतलब होता है ना कि इट्स हार्ड फॉर अस टू बिलीव कि ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? Very interesting story I heard when I was in Uttarakhand and we were on a site visit. तो द्रोणागिरी पर्वत आपने सुना होगा, जो माना जाता है कि हनुमान जी ने जड़ी बूटी के लिए वो द्रोणागिरी पर्वत लेकर गए थे। तो हम द्रोणागिरी पर्वत जो वहाँ पे सिचुएटेड है उसके थोड़े से एरिया में थे। वहाँ के कुछ लोकल विलेजर्स से जिन्होंने हमें रास्ता दिखाने में हेल्प की थी, तो लोकल से हम लोग बात कर रहे थे और तब हमें पता चला कि वो लोग अभी भी हनुमान जी को नहीं मानते क्योंकि वो उनका पर्वत उठा कर लेते थे। अच्छा। सो ये इतने सालों पहले का जो हम ये माइथोलॉजी चलती आ रही है, लोग अभी भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो हनुमान जी को अभी भी नहीं मानते, उनका मंदिर वहाँ अभी भी नहीं। क्या बात। So as a heritage management professional, आपने बहुत सारे monuments को visit किया होगा जो heritage में consider किए जाते हैं। तो from the standpoint of environment or from the standpoint of climate, आपने क्या differences observe किए अलग-अलग heritage sites में? So पहले के जो आर्किटेक्चर थे वो हर एक स्टाइल में आपको वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। सो व्हेन देयर इज अ वार्म एरिया, डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे उसका आर्किटेक्चर ऐसा होगा कि विच इज ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोटेक्टिव। एट द सेम टाइम वहाँ पे आप अंदर कोई रूम में बैठे हो तो आपको एक नेचुरल इंसुलेशन होता है, तो आपको बाहर के टेम्परेचर से अंदर टेम्परेचर कम होता है। रिवर्स करें हिमालयन रीजन में, तो हिमालयन आर्किटेक्चर जो है वो इंसुलेटर बनता है ऑन द अदर वे, कि आप अंदर बैठे हो तो यू फील सम वार्मनेस। तो वो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो अपने क्लाइमेट को लेकर इवॉल्व होती है एंड यू सी अ लॉट ऑफ स्टाइल्स व्हिच आर बिल्ट। सो आप हिमालयन आर्किटेक्चर बोलो, आप हवेली स्टाइल स्ट्रक्चर बोलो, मुगल में काफ़ी अलग अलग टाइप के फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सारे जो है वो वहाँ के एनवायरनमेंट
सराउंडिंग को ध्यान में लेकर वो लोग बनाते हैं। अभी हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास एसी है, वी हैव दिस आर्टिफिशियल सराउंडिंग, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। तो वॉट एवर बेस्ट दे कुड डू। आपने देखा होगा गुजरात में कच्छ साइड में आप देखोगे कि हाथ से लिपण भी करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टाइल जो उनको वहाँ पे कूलनेस लाने में help तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स भी मैंने देखे हैं कि अगर मैं गुजरात में हूँ और गुजरात में कहीं पर मैं गया, फॉर एग्जांपल लक्ष्मी विलास पैलेस, तो लक्ष्मी विलास पैलेस में कुछ कुछ यूरोपियन स्टाइल भी हैं, अलग अलग स्टाइल्स को कंबाइन करके वो एक पैलेस बनाया गया है। तो जब अगर हम एक क्लाइमेट पर्टिकुलर कंडीशन में रह के अगर अलग अलग स्टाइल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो भी क्या वो तब सोच पाते थे कि हमें यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ये एस्पेक्ट रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा ऐसा? हर एक जो भी राजा महाराजा थे उनकी खुद की एक चॉइस भी होती है। और काफी जगहों पे ऐसा होता है कि दे गेट इन्फ्लुएंस, दे वर ट्रैवलिंग एंड दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, और उन्होंने वहाँ के आर्टिस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया एंड दे मेड समथिंग। आप देखोगे कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो ऑल द एराज आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। काफी जगह पे आपको ओवरलैप भी दिखेगा। तो कई सिटीज में आप देखोगे कि दो टाइप के आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस होता है। सो यू आल्सो सी टेम्पल आर्किटेक्चर देयर एंड यू आल्सो सी मुगल आर्किटेक्चर देयर। तो वो क्या होता है कि इवोल्यूशन जो हो रहा है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बिल्डिंग्स के आर्चेस में देखने को मिलता है, वॉल्स में देखने को मिलता है। बट क्लाइमेट के हिसाब से हम अगर उसको देखें तो दैट इज के उसका जो मटेरियल वो उन्होंने यूज किया है वो मोर और लेस वो लोग सिमिलर रखते हैं, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा डिफरेंस है। और जैसे अभी अपने राजा महाराजाओं के बारे में बताया, तो बहुत सारी उनके जो महल होते हैं या फिर बहुत सारी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज थी जो 47 के बाद जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज बन गई, उनमें से कई प्रॉपर्टीज अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। तो जब भी अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो सब एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कुछ कुछ म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो और कुछ कुछ तो ऐसे होटल्स में भी कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो what do you feel about this our need of converting everything for our convenience and not letting it stay the way it was? Yeah, so when we go into this sector, तो क्या होता है कि हम डेवलपमेंट की बात करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, वो दो अलग बात है। Whenever we see an old monument जिसको रिस्टोरेशन की जरूरत है, when you restore it, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन उसलिए जरूरी है क्योंकि वो मेंटेन हो। तो काफी पैलेसेस को उन्होंने म्यूजियम्स में कन्वर्ट किया है। जो पहले का फॉर्म था उन्होंने मोर और लेस वही रखा है। अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू होटल्स। तो अब क्या होता है कि उसमें उन्होंने जो रूम्स हैं उसको अलग से रीडिजाइन किया है। बाहर का स्ट्रक्चर उन्होंने सेम रखा, पर अंदर का थोड़ा सा रीडिजाइन उनको करना पड़ा बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी की हम बात करें वो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रीच हो जाता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो एसेंस वहाँ पे है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर ऐसा हो कि वहाँ पे कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो फिर इट इज नॉट कंसीडर्ड एज हेरिटेज। So you have worked as a creative head at a nature photography firm, and you have a vast experience of photography because you go to different places, you capture different things, and you also conduct workshops. But एक चीज जो मुझे हमेशा प्रॉब्लमेटिक लगती है, जिसका पार्ट हम इसके पार्ट होते हैं कभी ना कभी, कि हम कभी भी कोई भी ऐसी हेरिटेज साइट को विजिट करेंगे या फिर कहीं पर भी जाएंगे, तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कैप्चर दैट परफेक्ट फोटोग्राफ ऑफ दैट प्लेस इंस्टेड ऑफ विटनेसिंग इट फर्स्ट हैंड। जैसे अभी हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ पर भी हमने सेम एक्सपीरियंस किया कि शाम के टाइम पे जब गंगा आरती होती है, तो इंस्टेड ऑफ विटनेसिंग द आरती, पीपल वर सीइंग द आरती थ्रू द फोन। तो आजकल के टाइम में जब मोबाइल फोटोग्राफी इतनी इजी है कि लोग कॉन्स्टेंटली वही करते रहते हैं। तो what's your perspective or what's your take on this trend of constantly capturing photographs and video? So मैंने बहुत टाइम पहले in my initial years I started a series called Heritage Selfie Series. So wherever somebody goes and they are visiting a heritage site, they go there, take a picture with the site, and they describe the
साइट के वो क्यों हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, दैट वाज एन अवेयरनेस कैंपेन। तो क्या होता है कि फर्स्ट यू गो देयर, यू लर्न अबाउट दैट साइट एंड देन यू टेक अ पिक्चर विद इट एंड देन यू पोस्ट इट। अब क्या हो गया है कि ये फास्ट फोटोग्राफी एंड रील्स की वजह से एवरीबॉडी वांट्स टू कोप अप विद द ट्रेंड्स। और उसमें क्या होता है कि समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पीपल फॉरगेट टू लिव दैट मोमेंट फर्स्ट। अब मैं खुद ऐसा प्रैक्टिस करती हूँ कि whenever I am there, if I see a moment which is capturable, तो मैं सबसे पहले मेरा कैमरा उठाती हूँ, I take one shot, अच्छा आया, कैमरा मैंने साइड पे रख दिया एंड देन आई एंजॉय। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द लाइन कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको वहाँ पे एक छोटे से स्क्रीन में देखना चाहते हैं या आप एक्चुअली वहाँ पे हैं, यू वांट टू फील दैट। तो ऐसी जो आपने अभी बोला कि गंगा आरती जैसी चीज़ है, तो इट इज़ सच अ डिवाइन थिंग। अगर आप वहाँ बैठकर उसको फील ना कर पाओ तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो डॉक्यूमेंट इट, यू हैव दैट मेमोरी विथ यू फॉर एवर। एट द सेम टाइम वो आपके यहाँ पे भी रजिस्टर होनी चाहिए कि हाउ यू फेल्ट। So, is there any noteworthy experience or experiences that you'd like to share? Because you've been to various national parks and you've visited various heritage sites. Is there anything that you'd like to share? Whenever you visit a particular heritage site, you see a different view. And India is a diverse culture. So हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे आपको एक अलग फ्लेवर, अलग एम्बियंस मिलता है। Talking about a few, whenever we are capturing a bird or wildlife, तो क्या होता है कि people only see a photograph, और उसके पीछे की मेहनत is मतलब क्या होता है कि you wait for hours and hours to get the perfect shot, क्योंकि birds इतने fast moving होते हैं, उनका एक pose आपको लेना हो तो you have to wait for hours एंड एक परफेक्ट शॉट आ जाए उसके बाद का भी प्रोसेस होता है कि यू हैव टू सी कि उसके आजू बाजू का जो कंपोजिशन है वो ठीक है या नहीं। सो अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू दैट। हम फेस्टिवल्स कवर करते हैं जैसे कि बरसाना की होली, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको आपका कैमरा बचाना पड़ता है। देयर आर अ राइट ऑफ कलर्स और आप उसके बीच में होते हो, पीपल आर चैंटिंग, एक माहौल अलग होता है वहाँ का। सो आप उसमें खो जाते हैं। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो कीपिंग इन द माइंड कि आपको अच्छे से शॉट्स लेने हैं। नोटवर्दी बात ये है वहाँ की कि आप वहाँ में अगर खो गए तो यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट एरा। आपको तब पता चलेगा कि यार वो लोग जब कृष्ण राधा की बात थी तब से आज वो लोग सच में वहाँ नीचे झगड़ते हैं। अच्छा। कि राधा के गांव में कृष्ण के वहां से कोई आया है और वो लोग भजन में अपने संगीत में उसको लेकर आते हैं। दे स्टिल फाइट एंड दैट इज द बरसाना होली। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको वहाँ पे जाके मिलती है। यू मीट सो मेनी पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो उनकी खुद की स्टोरीज वहाँ पे क्या रही है वो हमें बताते हैं। वी मीट लोकल पीपल, वहाँ का लोकल फूड हम टेस्ट करते हैं, तो उसकी भी एक अलग उसका भी मज़ा है। सो कोई एक नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट द थिंग इज आप जितना ट्रैवल करोगे यू विल लर्न। For sure. So I do have a lot of questions to ask, but I'll stop myself. I'll control myself, and I'll ask the last question for you. And that is, as a layman, what we do generally is whenever we go and visit natural heritage or national parks or which are preserved, right? Whenever we go there, we might want to capture those places, or we might want to go there with our friends and family. But there are a few things that we miss, like trying to manage our littering or trying to preserve that space in its essence, right? So from your perspective, what would you advise us to make sure कि जहाँ भी जाए जैसी भी हो वो चीज़ें वैसी की वैसी रहे? सो इसके लिए व्हाट वी सी हेरिटेज अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत है. इफ यू कनेक्ट विद दैट प्लेस, तो आप अपने घर में जाके तो कचरा नहीं डालते हैं. तो आप अगर ऐसा सोचे कि दिस इज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, नेशनल इम्पोर्टेंट, तो व्हाई शुड आई रिटर्न. वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओनरशिप से है. ओनरशिप सबसे पहली बात है कि वेरेवर यू आर गोइंग, एंड अभी की जो टर्म चल रही है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. नॉट ओनली प्लेसेस विच आर कंसिडर्ड एज हेरिटेज, आप कहीं भी जाइए, पर हमारी एक टेंडेंसी है कि हम वहाँ पे या तो लिटर करते हैं, कुछ लिख के आ जाएंगे, एंड वी थिंक कि अरे इट्स नॉट आवर जॉब, वो गवर्नमेंट देख लेगा. सो क्या होता है कि यू डिस्कनेक्ट विद दैट प्लेस. आप वहाँ पे जाते हो सिर्फ मस्ती करके वापस आते हो, तो वहाँ की जो एसेंस है यू हैवंट कैप्चर्ड. हम जब भी जाए तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग देयर, हमारा पर्पस क्या है जाने का. इफ इट इज एजुकेशनल, इफ इट इज समथिंग कि हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, तो वी विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वहाँ पे हम एटलीस्ट बुरा तो ना ही करें, पर अगर हो सके तो हम वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करें. To all those who are listening or watching this episode, make sure कि आप जहाँ पर भी जाए उस जगह की, उस प्लेस की रिस्पेक्ट करें, और कहीं पर भी आई लव यू लिख के मत आना. There are a few heritage sites which are vulnerable, तो वहाँ पर जाके हीरोगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है. So before we conclude this episode, we have added one more fun segment where we'll be asking quick questions to Prarthi and she'll be answering right away. And we'd like to call it rapid fire round. So Prarthi, are you ready for quick questions? I guess. Which is your favorite heritage site in India? Kutch. Top heritage place in your wish list? Great Kenai National Park. What is your favorite local dish? Being a Barodian saves it, but I love poha. I like both. Your favorite thing to capture? Mountains. Favorite mode of transportation? Road trips. A place that lost its essence, in your I opinion? guess Pushkar, because there are more photographers than the locals. Something that spoiled your day? Forgetting memory card at my hotel room and going for a shoot. That was a quick, fun round. So before we conclude, I would like Prarthi to share her experience with our audience. Well, first of all, thank you for having me here in the session. I loved answering all the questions. I hope you all enjoyed too. I would like to thank the entire team of All Fingers and Thumbs for doing this wonderful show. Thanks. To all those viewers who are watching or listening to this episode, thank you for showing us support. Keep watching and keep sharing our episodes. We are there on every single platform. You can find us All Fingers and Thumbs on YouTube, on Instagram, on Spotify and other different podcast platforms. Wherever you're watching or listening to this, thank you. Good night, good afternoon, good morning. Shabba khair.